Hello students. So as we have completed our chapter 1 of management, now we will be continuing with lesson number 2, that is principle of management. So students, first chapter में हमने learn कर लिया है कि what is management and what are its stages, right? Like planning, organizing, directing, these are all the stage of management. But in this chapter we will see what is principle of management. First of all, introduction. Management is an activity which is carried out since centuries. When we look up at history, we can see elements of management in various activities. During the rule of Chandragupta Maurya and Chhatrapati Shivaji in India, one can see proper use of management in policy of war strategy respectively. Several management gurus, thinkers, ideologists, and authors have periodically rendered new principles through evaluation and reconsideration of management concept. Thus, the history of concept of management is very ancient and has been changed periodically. From last many years, the ideology of management has been presented through different forms of approaches. Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fayol, Gilbreth, Max Weber, Chester Bernard, Peter F. Drucker, and C. K. Prahlad played an important role in rendering various principles to make it as per the era. Harold Kunz has hailed the ideology of the management as jungle. So students, we can see from this that India's management is since ancient time, right? From the time of Chandragupta Maurya and Chhatrapati Shivaji, management and principle of management were used at that time also. The strategies were made during the time of war, right? So the management was so perfect and it is so ancient that it is even used today in our businesses. And various management gurus have given their own principles at different point of time, right? टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल्स चेंज होते गए हैं, नए प्रिंसिपल्स आए हैं, पुराने प्रिंसिपल्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अभी भी रिक्वायर्ड है और हमेशा पुराने ज़माने से रिक्वायर्ड रहा है और आगे भी हमें मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा. इसीलिए कुंस जो है उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक जंगल की तरह है जो हमेशा मैनकाइंड के लिए नेसेसरी रहने वाला है. सो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल ऑफ अ गाइड फॉर द मैनेजर्स. ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि वो कैसे अपना बिजनेस चलाएं. In fact, the principles of the management are not the rules. It is the only sum and substances of assumptions, traditions and experiences. लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कोई रूल्स नहीं है कि भाई उनको फॉलो ही करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए ये प्रिंसिपल बेटर है तो आप उसे यूज़ करिए, नहीं लगता है तो आप उसे चेंज करके यूज़ करिए या मत यूज़ करिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसे यूज़ करना ही है. Different management gurus have obtained conclusions in different situations and it has been proven practical as per its execution. People got perfect result as well. So बहुत सारे लोगों ने ये प्रिंसिपल्स को अपनाया, अपने बिजनेस में यूज़ किया और उनको उनके परफेक्ट रिजल्ट्स भी मिले हैं. Thus, these principles have become the part of the management procedure for the business unit. In a business unit, some rules, principles might be formed in relation to the human behavior. So, the achievement of goal become easy. These principles are called as the principle of management. So, ये principles जो है वो business unit के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि बिजनेस यूनिट जो है वो टोटली ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा जो है ह्यूमंस जो है उनके ऊपर डिपेंड है. ह्यूमंस के लिए ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ principle of management. Management is the combination of art and science. As a science, it is natural to have principles in it. The principles of management are not rigid as the pure science, but they are flexible.
ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। जैसे साइंस के अपने अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकते, वैसे नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि वो चेंज हो सकते हैं। टाइम के साथ हर एक प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर, thus by making required changes there is a scope of additional new principles. Human behavior and the technology are such factors which changes periodically. Thus, the changes take place in the principle of management to cope up with the new changes. तो जैसा मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। ह्यूमंस को सेंटर में रख के ही प्रिंसिपल डिसाइड किए जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है, और दूसरा एक रीज़न है वो है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें हमारे प्रिंसिपल जो है वो पीरियोडिकली चेंज करने पड़ते हैं ताकि हम चेंजेस के साथ कोप अप कर सकें। Principle of management are the detailed and perfect guideline for decision making and its implementation. As per the principle of management, the capability of the employee could be increased through various encouragements. Example, to consider his service years to make decision about promotion of any employee, while employee get promotion by considering his capability in other unit. So management के जो principle हैं वो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, राइट। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हमें पता है कि एक बंदा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है हमारे बिजनेस यूनिट में, तो हम उसे प्रमोट कर देंगे, मतलब कि हायर पोस्ट दे देंगे। तो हायर पोस्ट देने की वजह से वो हमारी कंपनी में लंबे समय तक रहेगा, राइट। तो उसकी वजह से उसका मतलब कि कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ प्रिंसिपल, राइट, जो हमने यूज़ किया। जस्ट उससे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। अगर वो हमारी कंपनी के साथ डील मतलब रहता है लंबे समय तक, दैट इज़ गुड फॉर अवर बिजनेस। It is very important to understand the difference between the principle of management and techniques of management. Methods or techniques are the set of steps taken to achieve the target, while the principles are the guidelines for the decisions which have been taken during implementation of the techniques. So here is the difference between the techniques of management and the principles of management. Okay. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एक डिफरेंस है। टेक्निक्स क्या हैं? तो जब हम कोई टारगेट अचीव करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ टेक्निक। लेकिन वो डिसीजन को जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज़ प्रिंसिपल। ठीक है। सो वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल और प्रेफरेबल. It relates with the morality, while the principles are the universal truth and guidelines for the human behavior. So values जो है वो acceptable है और preferable है, क्योंकि वो morality मतलब कि हमारे जो morals होते हैं लाइफ के, हमारे जो ethics होते हैं वो होते हैं हमारी values जो होती हैं वो। लेकिन principle जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो ये उनकी वैल्यूज़ है, राइट। वो अपनी अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके। लेकिन प्रिंसिपल जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, सब लोग उसको मानते हैं। मतलब भगवान को सब मानते हैं, ठीक है, लेकिन मानने के तरीके अलग अलग है, राइट। तो वैसे ही वही डिफरेंस है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स में, कि वैल्यूज सबकी होती है लेकिन अलग अलग होती है, लेकिन भगवान जो है वो प्रिंसिपल है। आ गया समझ में? नाउ वी विल सी द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। टाइम के साथ हम हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं. दिस प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू परफॉर्म अ टास्क. कोई भी टास्क को परफॉर्म करते वक्त क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, दैट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दिस रिलेट्स टू टास्क एंड रीजन.
At the time of implementation of different tasks of management such as planning, organizing and direction, it provides guidelines to the manager for decision making. ठीक है, तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का या डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो भी है, तो उस टाइम पे क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो डिसीजन क्या डिसीजन लेना है, वो मैनेजर को गाइडलाइन जो होती है मैनेजर के लिए, दैट आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. As per expert opinion, mostly these principles are truth but are not absolutely truth. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा हर यूनिट में एक जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह ह्यूमंस अलग अलग होते हैं, ह्यूमंस के रिलेशन अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स जो है वो अलग अलग यूज़ होते हैं. हियर रूल ऑफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर. हमेशा प्रिंसिपल राइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन केस भी हो जाता है. एज पर अबो डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स. तो नेचर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वो यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहला जो नेचर है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, पूरे यूनिवर्स के लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहा गया है. Principle of management can be applied to the most of the business units wherever there is a need of human collective efforts. These principles are required. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस करो वहाँ पर ज़रूरत इसकी पड़ेगी ही, जहाँ पर भी ह्यूमंस होंगे वहाँ प्रिंसिपल्स होंगे ही. However, implementation of all the principles may change as per the time, form, activity and size of the business unit. But the principle of management can be applied to the most of the business units. ठीक है, टाइम के हिसाब से, फिर आपके बिजनेस कितना बड़ा है, छोटा है, एक्टिव फॉर्म, साइज, सबके हिसाब से प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको काम हमेशा यही आएंगे ही आपके बिजनेस यूनिट में. Thus, principle of management are comprehensive and universal. इसीलिए इसे comprehensive मतलब कि सब जगह यूज़ हो सके ऐसा, और universal माना गया है. Now second is flexible. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब कि चेंज ना होने वाला, ये फ्लैक्सिबल है. एज पर सिचुएशन हम इसको चेंज कर सकते हैं, जब भी मैनेजर चाहे तब रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज कर सकता है. व्हेन दिस प्रिंसिपल डू नॉट सीम टू मैच इन सम सिचुएशन द मैनेजर इज अलाउड टू अफेक्ट चेंज. जब भी सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल सही नहीं जा रहा है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, मैनेजर उसे चेंज कर सकता है. Example, in a large unit, the principle of division of work may be applied uniformly, but in small unit, the principle of division of work may not be applied in the same proportion. इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपका बड़ा बिजनेस यूनिट है तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि सबका काम जो है वो यूनिफॉर्मली बांट दिया जाता है, लेकिन स्मॉल यूनिट में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर छोटे 4 लोग ही काम कर रहे हैं तो 4 लोगों में कितना काम ज़्यादा काम है तो कितना काम बांटे वो पता नहीं चलेगा. अगर बड़ा यूनिट है तो उसमें सेम प्रपोर्शन में जा सकता है, लेकिन स्मॉल यूनिट में वो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो नहीं जा सकता है. तो फ्लेक्सिबल है, बड़े यूनिट के लिए अलग प्रिंसिपल यूज़ होगा और छोटे यूनिट के लिए अलग प्रिंसिपल होगा, लेकिन प्रिंसिपल तो होगा ही. थर्ड इज जनरल गाइडलाइंस. Principle of management are the result of experiences gained by different experts in different situations. At the time of managing a business unit, disparate and complex problems are arising. The form of these issues may be different as per the unit, which could not give similar result for each unit in all situations. Thus, principle of management could not be strictly applied for each unit, but can get desired result by accepting the principles as only guidelines and by using it in favorable situation. So, principle of management जो है वो एक्सपीरियंस के बाद बनाए गए हैं, मतलब लोगों ने उसे अप्लाई करके देखा अपने बिजनेस में और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से उसको लिखा है, ठीक है, बनाया गया है. तो इसीलिए अलग अलग सिचुएशन में अराइज होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम बिज़नेस करते टाइम अराइज हो जाती है, तो वो बिज़नेस यूनिट में उस
उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की जो गाइडलाइन है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हर अलग अलग सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है, मतलब ऐसा ही करना है ये सिचुएशन में, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हम सिचुएशन के हिसाब से हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज भी कर सकते हैं, राइट, और उसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस यूनिट में। एंड बाय यूजिंग इट इन फेवरेबल सिचुएशन, हम डिज़ायर्ड रिजल्ट भी पा सकते हैं अगर हम उसे सही सिचुएशन में सही अप्लाई करते हैं। फोर्थ इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। एज आई ऑलरेडी सेड यू के प्रिंसिपल्स जो है वो ह्यूमन को सेंटर में रख के ही बनाए गए हैं, इसीलिए ये पूरे के पूरे ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। As human is at the center of the management, the principle of management may seem to have a big effect on human behavior. Principle of management has direct relationship with the human behavior, and as the human behavior is a psychological phenomenon, it is necessary to consider by implementing principle of management. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे डिसाइड होता है, हमारे आजू बाजू की चीज़ों से, हमारे सराउंडिंग से। तो हमारी अगर सराउंडिंग अच्छी होगी, हमारा माइंड अच्छा होगा, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। तो मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को आप आजू बाजू मतलब उनके साथ अच्छे रिलेशन रखो, उनको मोटिवेशन दो, तो वो अच्छा काम करेंगे। तो यही है, इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है। फिफ्थ इज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब कि जो नेसेसिटी होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक बिजनेस यूनिट की नेसेसिटी है। कंटिंजेंसी इज वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड ईजियर बाय अ यूनिट with taking required decision through usage of this principle in certain unavoidable situation. कभी कभी अनअवॉइडेबल सिचुएशन अराइज हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो उससे बाहर निकलने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ किया जा सकता है। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट, मतलब किसको कितना वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है, एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, राइट। कितना पे करना है वो कैसे डिसाइड करे, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। दिस क्राइटेरिया ऑफ बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग नेसेसिटी एंड कंटिंजेंसी ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो वो किस पे डिपेंड करता है, ये क्राइटेरिया है कि हम सबके साथ फेयर रहे, राइट। किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सबको नेसेसिटी और उनके एफर्ट्स के हिसाब से मिलना चाहिए पेमेंट। Okay, so these are the 5 natures of principles of management. So today we have learned the meaning of principle of management and nature of business principle of management. Okay, so in the next lecture we will learn the next topic. Thank you.